a luxury loft, space styling and floral decor extraordinaire. She has an artisanal and thoroughly researched approach to styling your home, office, parties and special moments, and will make sure that it is as true to your personality as possible. As dynamic as her mom, Shobha Arya. Like mom, like daughter, on the stage together. Yes. And we would like to thank Isha for the beautiful gifts that she has sponsored for all the guests. And the beautiful selfie point. Do you see that beautiful balloons and flowers decoration? It's all done by Isha. So do not forget to go and take your photos there. And a big round of applause for Isha for the hard work she has done for us. Big round of applause for her, our special guest for tonight. From Ishqbaz and Dil Bole Oberoi here. Okay, so I want to ask. So all of these celebrities are. I know them for quite some time and they're all so friendly and so humble and so nice as you all watching. So I'm going to give an open invitation to which celebrity is ready to take some more trouble and give some more awards. Come on stage with me to give awards. Who's ready? Neha is ready? Good. Let's take Neha on stage. Pankit is ready? Glow आ गया ना? यार मोटी ना हो जाओ मुझे बहुत scared. खुशी के मारे. For the much awaited Business Divas for Excellence Awards 2017, the Business Diva for Excellence Awards are women who have achieved accolades, and as a part of All Ladies League and Women Economic Forum, a global non-profit organization which supports the cause of women empowerment, honor these wonderful women. So we'll begin with our first set of awards. And celebrity psychic, astrologer, trainer and healer with 19 years of experience. She's practicing since her childhood and has exceptionally high accuracy rate in her predictions, resulting in very high profile clients and students around the world. Founder of Find Your Fate and Astrology Institute. She has written for the Outlook Business Magazine and Mumbai Messenger. Has been interviewed by the Times of India. She has won several awards worldwide and is the international award winner titled World Women Super Award Achiever 2017 for a recognition on global level by World HRD Congress and Femina. She's ranked among the top 5 tarot readers in the world and #1 in Asia according to the leading international website. Applause for Priyanka Sawant, the celebrity astrologer with very accurate predictions. So yeah, I want to ask you, what does my tarot say for the next year? Right now, look at my face and tell me. Acha, aisa hai kya? So why don't you say something about your work? You say something? Good evening, everyone. It's really, I'm short of words today. Thank you for this award. It means a lot to me. I would also like to thank my family, my guru, my almighty, my clients, my customers, my students for being the support in my life. I would also like to thank All Ladies League and everyone at their team, because they are the people who have gathered all the women today to give out the awards and to recognize their work and their hard work which they have put in. It's really commendable that they have actually chosen different fields, different people, as well as they are actually giving awards to every categories, and actually they are supporting the women empowerment, which I would like to really thank Smita, Kalyani and other team members. I'm sorry I don't know your names, but you all are so good that you're supporting the women empowerment, which is a really, really important thing what you're doing.
and that gives an impression to the world that women can do really lot of things. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you, Priyanka. I'd next like to call upon Shambhavi Chugani. Didi has personally appreciated her work. Shambhavi is a very multitasking lady. She manages her home, her kids, her work, and also takes time for society and follows her passion with colors. Shambhavi has also been kind enough to make some creatives for all the participants. She just went out of her way to help promote all the awardees. Thank you, Shambhavi. Yeah. Shambhavi, would you like to speak few words? Thank you. Thank you. Thank you. This moment means a lot to me. My hard work, my long nights, my research, everything seems like it's been awarded right now to me. I have some very important people to thank here. Invisible and my visible support. Visible support is definitely my family members who are always around, and my invisible support are my people who trusted me and they come and seek my guidance, and definitely my friends who are with me all the time when I'm not around to look after my child. And I would like to bring him up on the stage. Come. He's been so excited with my award that he's been wanting to come. So here he's go take this award. Thank you Shobha, thank you Smita, thank you Shobha for being there, thank you Kalyani, Nidhi, thank you so much for the opportunity, and thank you the wonderful line of celebrities to honor me. Thank you so much, it means so much. ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा कर रही है जो भी कर रही है, क्योंकि नए नए लोगों को चांस दे रही है, उनको फैसिलिटेट कर रही है, उनको अवार्ड्स दे रही है. सो हाँ मतलब I would really like to congratulate them, और I think it's a really great platform. हमें भी पता चल रहा है कि कितने achievements है लोगों के and how much hard work they do. Yes, and there's so many. It's really good to know कि इतनी सारी women entrepreneurs हैं जो इतना अच्छा कर रही हैं, इतने अच्छे businesses कर रही हैं. So feels really nice and feels very proud to be a woman. I think this organization is doing very good. जैसे कि माहौल जैसा हो रहा है कि औरतें अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, बिजनेस में हो या फिर ऑन जैसे आप एक्ट्रेस भी हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो वो अब तक उनको ओहदा नहीं मिल पाया है. अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं कि जो औरतों को काम करने नहीं देना चाहते हैं, तो उनके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए कि जिनको मौका नहीं मिलता है, और जो आजकल की जो विमेन हैं उनको मिला है. तो नए लोगों के लिए जो छोटे शहरों के लोग हैं वो देखेंगे और उनको वो प्रोत्साहित होंगे उनको देखकर. हाँ, उन्हें ऐसा लगेगा कि अच्छा है कि आजकल बहुत सारे दूसरी लेडीज़ भी हैं, दूसरी विमेन भी हैं जो ऐसा कर रही हैं. उनको वहाँ इतना अचीव कर रही है. अच्छी बात है कि वो अचीव करेंगे अगर उनको जाने दिया जाए या उनको मौका मिले तो, किया जाए तो, अपॉर्चुनिटी मिले तो. आगे यहाँ की जो आज स्टॉल्स लगाए हैं, जो जितने भी महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे आज? मैं ये कहना चाहूँगी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग
इस लेवल तक पहुँचे, इस मुकाम तक पहुँचे कि इतना अच्छा स्टॉल रख सके, इतना अच्छा इतनी अपॉर्चुनिटी मिली कि यहाँ पर उनको स्टॉल लगाने का मौका मिला और उनको अवार्ड मिला और हम आप सब लोगों ने उनको कैमरे में कवर किया। स्मिता जी ने आप लोगों को अवार्ड से भी नवाजा है, तो उनके लिए क्या कहेंगे कि इस तरह के आपके काम को इस तरह से ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको लाइक एक पहचान मिलती है, एक प्लस पॉइंट जो हो रहा है? प्लस पॉइंट ये है कि ये स्पेसिफिकली विमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड विमेन बिजनेस वुमेन या विमेन प्रोफेशनल पीपल हु हैव अचीव्ड इन लाइफ स्पेसिफिकली तो ज़्यादा क्लोज टू है टू आवर हार्ट्स बिकॉज इट्स क्लोजर टू आवर हार्ट्स बिकॉज स्पेसिफिकली विमेन के लिए वी फील रियली प्राउड कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी हमें भी मौका मिला है और हम लोगों को भी अवार्ड मिला है। मतलब उन लोगों ने हमें ऑनर दिया, उन्होंने हमें चूज़ किया, दैट इज़ अ वेरी बिग एंड अ वेरी गुड थिंग एंड थैंक टू स्मिता। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और जो ये डिफरेंट स्ट्रेटास से जो विमेन को फेलिसिटेट किया जा रहा है, इट्स अ वेरी मोटिवेटिंग थिंग बिकॉज ये लोग जो है ज़्यादातर लोग इनके बारे में जानते नहीं और वो बहुत संघर्ष करके, जैसे कि अभी मैंने सुना कि बहुत सी लेडीज़ ने बहुत संघर्ष करके और बहुत ही लंबी जर्नी करके अपना एक मुकाम तक पहुँची हैं, तो उनको तो फेलिसिटेट करना बनता ही है। सो इट्स वेरी पॉजिटिव, इट्स वेरी नाइस। सर आज काफ़ी लेडीज़ लोगों को आपने अवार्ड दिया, तो आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है बिकॉज जनरली क्या है कि जैसे कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही बोला था कि बोलते हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है, लेकिन तरक्की क्यों कर रहा है? भारत माँ है ना, भारत पिता नहीं है। सो माँ मतलब औरत, और क्योंकि हमारी ज़िंदगी में औरतें हैं इसलिए हम तरक्की कर रहे हैं। सो इट्स आई फील ऑनर्ड टू फेलिसिटेट दिस विमेन। सर काफ़ी लेडीज़ ऐसी है जो आगे नहीं बढ़ पाती, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह का हौसला बढ़ाना चाहिए? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सब औरतों को पढ़ना चाहिए और कभी कोई कारणवश अगर पढ़ नहीं भी पाते हैं तो कोई लोगों में हुनर होता है, तो अगर पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं तो अपने हुनर को इतना मजबूत करो कि आप कहीं भी पहुंच सकते हो। सर हम एक आज़ादी की बात करें तो आज़ादी को तो हमको काफ़ी टाइम हो गया, तो हर एक वाइफ को उसी तरह की आज़ादी मिलनी चाहिए जिस तरह की हस्बैंड को होती है, एक आम इंसान को होती है। देखो, आज़ादी तो है, ऐसा नहीं है कि आज़ादी नहीं है, और इट्स नॉट अबाउट हस्बैंड और वाइफ। आज़ादी भी जो है वो बैलेंस में होनी चाहिए दोनों के लिए, हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी, और दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में मिलके एक दूसरे के सपनों को साकार करने का एक माध्यम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आगे बढ़ गया, एक पीछे रह गया दूसरे का ध्यान रखने के चक्कर में। सो यही है कि दोनों ने एक दूसरे का साथ देके दोनों ने एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। सर आपको बेस्ट डायरेक्शन के लिए अवार्ड मिला है यहाँ पे, तो आगे का क्या आपका प्रोग्राम है, किस तरह से आप आगे अपने एज एक्टिव से भी डायरेक्शन में आप आए हैं, क्या कहना चाहिए? एज एन एक्टर अभी भी मैं एक्टिव हूँ। अभी मेरा शो ख़त्म हुआ, बहू हमारी रजनीकांत, जो आपने देखा होगा स्टार अपना लाइव हो के लिए, और आगे भी शो कर रहा हूँ मैं स्टार प्लस के लिए। बीच में थोड़ा सा मतलब एक शो ख़त्म होता है और दूसरा शो शुरू होता है, उसके बीच में गैप होता है। तो आई ऑल्सो हैव माई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, इवेंट्स भी करते हैं हम लोग। इनफैक्ट विमेंस डे के लिए हमने एक इवेंट किया था जिसमें हमने एसिड अटैक विक्टिम्स को फेलिसिटेट किया था। सो इसी तरह का इवेंट था जहाँ पे जो एसिड अटैक विक्टिम्स होते हैं उनकी लाइफ में अटैक के पहले जो उनकी लाइफ होती है, अटैक के बाद पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, वो कैसे उससे डील करती है और कैसे आगे बढ़ती है। फिर
ये चैट शो का थॉट मेरे दिमाग में आया, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जितने भी चैट शोज़ हमारे इंडिया में बने हुए हैं सारे बॉलीवुड एक्टर्स को केटर करते हैं, और टीवी एक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे का भी काम करते हैं। लेडीज स्पेशली, उनको तो मेकअप भी करना होता है, 1-1, 2-2 घंटे का मेकअप करते हैं वो लोग, और पूरा 12 घंटा काम करते हैं, जिम भी जाना पड़ता है। कई फीमेल्स हैं जिनके बच्चे हैं तो बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो और ज़्यादातर क्या होता है कि टीवी में लोग उनको उनके किरदार के रूप से जानते हैं, कोई किसी को उनके बारे में ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं है कि उस किरदार को निभाने वाले के पीछे जो एक्टर है उनको ज़्यादातर जाना नहीं जाता है। सो ये चैट शो का जब भी थॉट आया तो हमने प्रोड्यूस किया, मेरे साथ जो मेरी को एक्टर थी भाभी दुराब जी, तो हम दोनों ने इस साथ में इसे प्रोड्यूस किया है। शी इज़ द एंकर ऑफ द शो एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ द शो। सो वही हम दिखाते हैं कि जो टीवी एक्टर्स हैं पर्दे के पीछे उनकी क्या पर्सनालिटी है। और सारे दिव्यांका त्रिपाठी, विवेक दहिया, अभी इश्कबाज के सुरभि और कुणाल आए थे, और जितने भी अदा खान आई थी, शशांक व्यास आया था, सब। और इस चैट शो को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है और इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। बट और डायरेक्शन करके मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, बट आई एम लाइक मोर एक्टिव एज एन एक्टर एंड ए डायरेक्टर। तो अगर कुछ एक्टिंग का असाइनमेंट आ गया तो एक्टिंग करेंगे, जब बीच में गैप होगा तो ऐसा कुछ सीजनल कर लेंगे। स्मिता जी को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आज महिलाओं के लिए खास अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया? एक्चुअली उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस तरह का इवेंट्स होते रहने चाहिए। और क्योंकि देखो मर्दों के लिए बहुत आसान होता है काम करना, क्योंकि उनसे तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि काम करो, बाहर जाओ, पैसे कमाओ। औरतों से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन और उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बच्चे होते हैं, पति का ध्यान रखना होता है, सास ससुर होते हैं। तो एक तरह से उनकी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो एक मर्द से बहुत ज़्यादा होती हैं। उसमें से भी टाइम निकाल के अपनी पहचान बनाना एक बहुत ही काबिल तारीफ़ चीज़ है, और उनको फेलिसिटेट करने का जो ये आइडिया है बहुत ही बढ़िया आइडिया है। और मैं तो बोलता हूँ कि जितने भी लोग इवेंट्स वगैरह करते हैं उन्होंने एट अ रेगुलर बेसिस एटलीस्ट साल में एक बार जो ऐसी महिलाएं उनको मोटिवेट करना चाहिए। एक्चुअली आई एम सो सॉरी, मैं इस टाइम का बिग बॉस देख नहीं पाया हूँ बिकॉज ऑफ माई बिजी स्केड्यूल, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट हितेन तेजानी इज़ अ फ्रेंड एंड आपने मुझे बताया था, मुझे पता चला कि वो बिग बॉस में अभी नहीं है। मेरा जो पहला शो था कभी सौतन कभी सहेली, उसमें हितेन वी हैव वर्क टुगेदर एंड सो दैट्स ऑल आई नो अबाउट बिग बॉस। बाकी मैंने बिग बॉस इस टाइम देखा नहीं, आई एम रियली सॉरी। शुरू करें? शुरू कर। विपी जी क्या कहना चाहेंगे? एक लाइक आप महिला भी हैं, साथ में लाइक पॉलिटिकल फील्ड में भी हैं, किस तरह से महिलाओं को जो प्रोत्साहित दिया जा रहा है बिजनेस दीवा अवार्ड के थ्रू, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है ये ऑल लेडीज़ लीग की तरफ से, मुंबई चैप्टर की जो प्रेसिडेंट है स्मिता जी की तरफ से। बिकॉज़ ऐसे प्रोग्राम से ना अलग अलग फील्ड की महिलाएं जो जुड़ती हैं उनको एक अलग प्रोत्साहन मिलता है। हर जगह पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते, बिकॉज़ कॉर्पोरेट्स के अलग प्रोग्राम्स होते हैं, अलग तरह के अवार्ड फंक्शंस, ग्लैमराइज्ड अवार्ड फंक्शंस होते हैं। सो इस टाइप के प्रोग्राम से उनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड महिलाएं मैं देख रही हूँ यहाँ पर आई हुई हैं, अलग अलग फील्ड्स की तरफ से। कोई सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है, कोई सेलिब्रिटी कॉर्पोरेट है, कोई सेलिब्रिटी डर्मेटोलॉजिस्ट है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये। मैम महिलाओं के बारे में जब बात करते हैं कि अब लाइक काफ़ी देखने को मिलता है कि महिला घर से बाहर निकल रही हैं, काम को लेके अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। जो लोग नहीं कर पा रहे, जो अभी भी ऐसे प्रांत हैं, जो ऐसे राज्य हैं, जो ऐसे गली है जहाँ पे महिलाओं को काफ़ी हद तक दबाया जाता है, उनको उतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता जितना लड़कों को दिया जाता है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, दो तरह के चीज़ें होती हैं इसमें। या तो कोई एक स्टेट होती है जो थोड़ी सी पिछड़ी हुई होती है, जैसे गांव खेड़े के लोग होते हैं, थोड़े पिछड़े हुए होते हैं, वो अपनी महिलाओं को बाहर काम करने जाने देने में उनका खुद का मतलब एक इंसल्ट फील करते हैं। और ऐसे कोई ऐसे नेतागण होते हैं जो कि अपने एरिया में इतना ज़्यादा एम्पावरमेंट नहीं करते हैं, डेवलपमेंट नहीं करते हैं कि वहाँ के लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं पाता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई जैसे शहर जहाँ पे कि कुछ भी इतना ईजिली अवेलेबल नहीं होता है सबके लिए, हर तरीके से हर कोई सिर्फ इसको स्वप्न नगरी की तरह देखता है, और जहाँ पर ऐसे प्रोग्राम्स से मतलब लेडीज़ को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं यही मैसेज सारे नेताओं को भी देना चाहूँगी, सब और लोगों को भी देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने लोगों, मतलब आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी पॉलिटिकल हेल्प नहीं मिलती है सो लेडीज़ को। सो मैं यही कहना चाहूँगी एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ पॉलिटिशियन, कि प्लीज़ नेतागण थोड़ा सा वक्त निकाल के ऐसे मुद्दों को उठाएं कि जैसे वुमेन रिजर्वेशन है, उसके लिए आज महिला कांग्रेस भी इतना फाइट कर रही है कि 33% रिजर्वेशंस महिलाओं को मिलना चाहिए। सो मैं इतना बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ज़रा अपने घर की लेडीज़ को आगे बढ़ाइए, आगे लाइए, उससे काफ़ी देश तरक्की करेगा। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में आप देखते हैं कि दोनों इक्वल होते हैं। सो हमें हेल्प करनी पड़ेगी सोशल मीडिया के ज़रिए भी, नेताओं की तक पहुँच के भी। आज जिस तरह से आपके काम को, आपके इस जो आपने आज जो पहचान अपनी बनाई है, इस तरह के फंक्शन में जब अवार्ड से नवाजा जाता है तो कैसे फील होता है? मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, बिकॉज़ अगर आप मेरे घर आके देखेंगे तो अवार्ड्स रखने की जगह भी नहीं बची है। बट हर दिन एक नई ट्रॉफ़ी लेने की फिर भी इच्छा रहती है, बिकॉज़ जब आप इतना मेहनत करते हो, इतना काम करते हो, तो आप घर नहीं बैठे रह सकते। आपको लोगों को मोटिवेट करने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा, लोगों को बताने के लिए कि आप कैसे लोगों को इंस्पायर कर सकते हो अपने काम की वजह से। तो आज भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे जो ये बिज़नेस दीवा अवार्ड दिया गया है। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी स्मिता जी का, जिन्होंने कि ये प्लेटफॉर्म खोला है। शोभा आर्या जी हैं जो कि इतना अच्छा वाव अवार्ड्स करती है, वुमेन ऑफ वर्दीनेस। सो ऐसी लेडीज़ को हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू। मोनिका जी, आप एक डॉक्टर हैं। आज जो जिस तरह से बिजनेस दीवा अवार्ड में आपको अवार्ड से नवाजा गया है, आज क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से महिलाओं को जो प्रोत्साहन मिल रहा है अपने काम को लेकर, अपनी पहचान को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो मैं ऑल इंडिया वुमेंस लेडीज़ लीग का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर देम for giving me such a big award. Now secondly, when I want to talk about women empowerment, I being a facial surgeon and skincare expert, I firmly believe that all women, all ladies and all women should be economically, socially as well as emotionally they should be independent. And when we do that, I do that every day when I talk about my cosmetic procedures. I do, it's not only cosmetic procedures, but if for example a woman who is acid attack victim or alopecia suffered victim, or she's got some scar which emotionally she's not very happy, it is making her depressed, I do that in every day of my practice, that to give treatment to them and boost their confidence. So that's what I think, that we all should work together towards women empowerment and make them successful and independent, not only socially but as well as economically as well as emotionally. That's what I want to talk about women empowerment. मैम, जैसे आपने बताया कि कुछ ऐसे आपके यहाँ पे भी पेशेंट्स आते हैं जो एसिड अटैक से होती है, महिला जो पीड़ित होती है, तो इस तरह की महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी ऐसे कुछ पुरुष है इस लाइक एट प्रेजेंट जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, या फिर कुछ ऐसी बात है जो उनको लाइक नहीं गवारा होती
होती है कि महिला उनको ना कर देती है, उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती, तो उनके लिए क्या? I strongly condemn this anti-social act of men towards this woman. I feel women are something very important. They are so precious in your life. Do not spoil them by spoiling their beauty. You're not spoiling them, but you're just trying to spoil their beauty. But in turn, you are making them strong as a woman, and I feel that's very wrong what you do. So please, boys and men, don't do that. They all are somebody's sister, wife or daughter, so you should respect them, and you should work towards their enhancement in our country like India. आज स्मिता जी को क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से महिलाओं को जो अवार्ड दिया जा रहा है, आप उसके लिए क्या कहेंगे? स्मिता जी को मैं बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ. आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, द काइंड ऑफ वर्क शी इज़ डूइंग, द काइंड ऑफ struggle or kind of hard work she is putting to get this woman appreciated in the society and working towards lifting them up in the society. I am very, very thankful and I am very proud of her. Thank you. तो ये अवार्ड का फंक्शन ऑल लेडीज़ लीग मुंबई चैप्टर्स की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है. इसमें कंट्रीब्यूशन मैंने, स्मिता ने और कल्याणी, निधि और हमारी एक और टीम है माधवी, उसने हम सब ने मिलकर किया है. हम 3 महीने से इस पे काम कर रहे थे और द एम बिहाइंड गिविंग दिस अवार्ड, ये अवार्ड हम औरतों को देना चाहते हैं क्योंकि औरतें सबसे ज़्यादा मेहनत करती हैं. मुझे ऐसा लगता है घर में बाहर दोहरी ज़िंदगी जी रही हैं, दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ कैरी कर रही हैं, लेकिन उनको कोई रिकग्निशन नहीं मिलता, सिर्फ बुराइयाँ ही मिलती है, अत्याचार मिलते हैं, उनको कोई अच्छा बोलने वाला नहीं मिलता. तो इसीलिए हमने ये अवार्ड फंक्शन रखा है कि उनको रिकग्नाइज़ करने के लिए, उनकी मेहनत को, उनके टैलेंट को उभारने के लिए, बाहर लाने के लिए, उनको हमने अपना डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए एक्सपो रखा था दिन में, और अब शाम को हम उन्हें बिजनेस दीवा अवार्ड दे रहे फॉर एक्सीलेंस इन देयर फील्ड्स. तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है उन औरतों को रिकग्नाइज़ करने के लिए जो हर मुश्किल का सामना करके यहाँ तक पहुँची हैं. थैंक यू. आप क्या कहना चाहेंगी? आपने भी कई ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जहाँ पे नए बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं, चांस देते हैं ताकि इस तरह के प्लेटफॉर्म पे हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनको आगे आने का एक पहचान मिले. आप दोनों का ही एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है हमारी इंडियन यूथ को लेकर. आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सब औरतें का जो एक ग्रुप बना हुआ है, या ग्रुप तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो एक दूसरे को हाथ पकड़ के चला ऊपर बढ़ा रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. अभी अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं पूरी दुनिया में तो नहीं पहुंच सकती, तो मेरे जैसी स्मिता हैं, स्मिता के जैसी और हम सब जुड़ के एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं सबके लिए, कुछ हमारे लिए, कुछ लोगों के लिए, कुछ औरतों के लिए, कुछ बच्चों के लिए, और हम अपनी अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म दें. स्पेशली उन लोगों को जो लोग बैक एंड में काम करते हैं, उन लोगों को जिनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उनको एक सामने से प्लेटफॉर्म, और उनको प्लेटफॉर्म देने का मतलब ये है कि जब हम प्लेटफॉर्म उनको देते हैं तो 10 सेलिब्रिटीज़ आते हैं, 10 डायरेक्टर आते हैं, 10 प्रोड्यूसर आते हैं, तो उनका जो स्ट्रगल है कि ऑडिशंस में जाना, ये करना, वो थोड़ा सा कम होता है. अगर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को एक लुक पसंद आता है तो वो लोग तुरंत ही उनको बुला लेते हैं. तो उनका एक रास्ता, अगर हमारे 20 कंटेस्टेंट्स में से या 20 अवॉर्डीज़ में से अगर किसी 2 का भी लाइफ हम चेंज कर पाएँ तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है. तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. सब लोग जुड़ के चल रहे हैं साथ में, एक दूसरे को हेल्प करके ग्रो करने में ही मज़ा है. मैं एक बात बोलना चाहूँगी. टाइम ऐसा आ गया है कि अब वो दिन गए जब एक दूसरे को टांग पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश की जाती थी. अब हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए, और यही हम लोग कोशिश करते हैं. बिल्कुल. आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी तक जिन परिवारों में अभी भी महिलाओं को पहचान नहीं मिल पा रही, या फिर वो चांस, मौका नहीं दिया जा रहा है?
कि वो भी अपने जो टैलेंट है, जो भी वो करना चाहती है लाइफ में, वो करके दिखाए, ना कि सिर्फ घर में ही रहे। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो भी ये देख रहे हैं, मैं उनसे स्पेशली बहुत सारे कॉरपोरेट से और बिजनेसमैन से, सोशलाइट्स और डिग्नेटरीज से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब हम जैसे लोग एक इवेंट क्रिएट करते हैं, हमको उनका फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है। तो मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस सोशल कॉजेज़ को लेके, वुमेन को लेके हमको सपोर्ट करती हैं फाइनेंशियली, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, तो हम वो प्लेटफॉर्म और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हमको फाइनेंशियल सपोर्ट इतना नहीं मिलता, स्पॉन्सरशिप इतनी नहीं मिलती, तो हमारी जो करने की शक्ति है वो सीमित हो जाती है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट यही है कि व्हेनेवर ये मिनिस्टर्स बोले या गवर्नमेंट बॉडीज़ बोले या सोशलाइट्स कॉर्पोरेट्स बोले, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जब हम जैसे लोग आपके पास एक प्रपोजल लेके आते हैं टू प्रमोट न्यू टैलेंट, टू प्रमोट न्यू कॉज, आई सिंसियरली वुड रिक्वायर यू टू हेल्प अस सपोर्ट फाइनेंशियली, बिकॉज वैसे तो सब कुछ फ्री में मिल जाता है, लेकिन पैसे के बगैर कुछ काम होता है नहीं, है ना। तो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे लेवल पे करने के लिए वो एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, which I would really request them to help us. आज हमारा इवेंट जो हो रहा है बिल्कुल पूरा चैरिटी इवेंट है, उसमें हमने एक भी पैसा किसी ना कमा रहे हैं, ना हमने बाहर से कहीं से लिया। ये सब औरतें अपना कंट्रीब्यूशन कर करके, स्पॉन्सरशिप्स हम लोग एक दूसरे को फ्री में हेल्प कर करके हमने ये इवेंट इतना बड़ा खड़ा कर दिया। तो आप सोचिए कि अगर कोई थोड़ा सा हमारे मिल जाता, सपोर्ट मिल जाता, तो हम कितना बड़ा और कितने लोगों तक पहुंच पाते और कितने लोगों को और हेल्प कर पाते। तो थोड़ी सी सहायता गवर्नमेंट से, थोड़ी सी सहायता सोशलाइट्स डिग्नेटरी से अगर हमको मिलती है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी भी अगर सपोर्ट मिलते हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जहां हमको और भी बहुत कुछ करना है, लेकिन कहाँ पर गाड़ी अटकती है, स्पॉन्सरशिप के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, वो नहीं मिल पाता। आइडियाज़ बहुत हैं, वेरिएशंस, क्रिएशंस बहुत कर सकते हैं हम, टैलेंट बहुत है। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी गांव-गांव में जाके, स्पेशली औरतें और उनकी जो पंचायत वहाँ बैठती है और वो जो पुरानी सोच है उसको बदलें, सब करना चाहते हैं हम, लेकिन हम कैसे करें? हमारे पीछे कोई बैकबोन नहीं है ना, तो हम अपनी तरफ से जितना होता है एक दूसरे को मिला के चल रहे हैं, एक दूसरे से करके मिलके हाथ जोड़ के चल रहे हैं, लेकिन अगर वो थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू। थैंक यू। It's completely a pleasure and an honor to always get awards, and this is, I think, my third award from the past 2 months, and I really feel very blessed and very happy. In spite of it being the wedding season, being honored, it's definitely a privilege. इस तरह के अवार्ड फंक्शन में जब एक अवार्ड से, एक पहचान से जब नवाजा जाता है अपने काम को लेके, आप कैसे फील होता है? मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली जब आपके काम को रिकग्नाइज़ किया जाता है और आपको रिकग्नाइज़ किया जाता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। महिलाओं को जिस तरीके से आज की युग में जैसे इनिशिएटिव जो कहे कि और महिलाओं को आगे आए, उनको काम के से ज़्यादा इंस्पायर करें, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है हर औरत को काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि आज जैसे वी ऑल आर very forward in today's world. I think it's important for every woman to do something, no matter what it might be. You should do something that you really enjoy doing, and that's really important.